Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss ecology, scope and development of ecology, types of ecology, and ecological niche. The term ecology is derived from Greek words oikos meaning the family, household, and logi meaning to study. This term oikologic was used by German zoologist Ernest Haeckel in 1866. Ecology is the study of organisms in their homes. Ecology is also the study of relationship of organisms to their environment. This relationship includes interaction with physical world and with the member of other species and same species. The organisms are directly affected by the environment. Similarly, activities of organisms try to change the environment. Environment is the physical and biological conditions under which an organism lives. Term ecology Greek वर्ड्स oikos और logi से derived है. oikos का मतलब है फैमिली, हाउसहोल्ड और logi का मतलब है टू स्टडी या स्टडी करना. टर्म ओइकोलॉजिक सबसे पहले जर्मन जोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में यूज की. जानदार की इनके घरों में स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं. जानदार और इनके माहौल के दरमियान रिलेशनशिप का मुताला भी इकोलॉजी है. इस रिलेशनशिप में फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन, एक स्पीशीज के अफराद का आपस में इंटरेक्शन और दूसरी स्पीशीज के अफराद के साथ इंटरेक्शन शामिल हैं. ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं. इसी तरह से जानदारों की एक्टिविटीज भी इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करती है. वो फिजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन जिनमें ऑर्गेनिज्म रहता है इन्वायरमेंट कहलाता है. Scope and development of ecology. Ecology is the study of distribution and abundance of organisms. It includes the study of factors which control the number and location of organisms. There are different levels of ecology. Interactions of organism and environment take place in each level. These levels are organism ecology, population, community, biomes and ecosystem. ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन और अबंडेंस की स्टडी इकोलॉजी है. इनमें उन फैक्टर्स की स्टडी भी शामिल है जो ऑर्गेनिज्म की तादाद और लोकेशंस को कंट्रोल करते हैं. इकोलॉजी के डिफरेंट लेवल्स हैं. हर एक लेवल में ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन पाए जाते हैं. इकोलॉजी के डिफरेंट लेवल्स में ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम्स और इकोसिस्टम शामिल हैं. Organism ecology, it is also called art ecology or physiological ecology. It is concerned with behavioral ways, physiological ways and morphological ways. Each organism has certain limits of tolerance. These limits determine the habitat of organism. ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी को आर्ट इकोलॉजी या फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी भी कहते हैं. ये बिहेवियरल वेज, फिजियोलॉजिकल वेज और मॉर्फोलॉजिकल वेज से मुताल्लिक है. हर ऑर्गेनिज्म की कुछ टॉलरेंस लिमिट्स होती हैं. ये लिमिट्स ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट डिटरमिन करती हैं. Population. Population is the next level of ecology, the group of interbreeding individuals belonging to same species and living in a common geographic is called population. The populations of plants and animals
do not function independently in an ecosystem. Some populations compete with other populations for resources such as food, water, and space. In some cases, one population is the food source for another. Two populations may mutually benefit each other. A population can be described in terms of member, growth rate and age distribution. इकोलॉजी का दूसरा लेवल पॉपुलेशन है। एक स्पीशीज से ताल्लुक रखने वाले इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो एक जगह पर पाया जाता है पॉपुलेशन कहलाता है। प्लांट्स और एनिमल्स की पॉपुलेशंस एक इकोसिस्टम में इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं करती, यानी ये इंडिपेंडेंट तौर पर नहीं रह सकती। कुछ पॉपुलेशंस खुराक, पानी और स्पेस के लिए दूसरी पॉपुलेशंस पर डिपेंड करती हैं। कुछ केसेस में एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन का फूड सोर्स बनती है। दो पॉपुलेशंस एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट दे सकती हैं। एक पॉपुलेशन को मेंबर, ग्रोथ रेट और एज डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से डिस्क्राइब कर सकते हैं। Community. All populations within an ecosystem are known as community. The populations in a community are interconnected to one another. The individuals of these species interact among themselves and with individuals of other species to form a community. These interactions are predation, competition, parasitism, commensalism, mutualism and grazing. एक इकोसिस्टम में पाई जाने वाली तमाम पॉपुलेशंस कम्युनिटी कहलाती हैं। एक कम्युनिटी में पाई जाने वाली पॉपुलेशंस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। इन पॉपुलेशंस के अफराद आपस में भी इंटरैक्ट करते हैं, इसी तरह से दूसरी पॉपुलेशंस के अफराद से भी इंटरैक्ट करते हैं। इन इंटरैक्शंस में प्रीडेशन, कंपटीशन, पैरासाइटिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म और ग्रेजिंग शामिल हैं। बायोम्स, द मेजर रीजनल इकोलॉजिकल कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड बायोम्स। ईच बायोम consists of different combinations of plants and animals. These plants and animals are fully developed to form climax community. Each biome is characterized by a uniform life form of vegetation such as grass or coniferous trees. There are 6 major terrestrial biomes: forest, grassland, woodland, shrubland, semi-shrub, desert and desert। एक रीजन में कसरत से पाई जाने वाली प्लांट्स और एनिमल्स की कम्युनिटीज को बायोम्स कहते हैं। हर बायोम प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंट कम्बिनेशंस पर मुश्तमिल होता है। ये प्लांट्स और एनिमल्स फुली डेवलप होकर क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनाते हैं। हर बायोम में वेजिटेशन की एक मखसूस फॉर्म होती है, जैसा कि ग्रास या कोनिफेरस ट्री। 6 मेजर बायोम्स ये हैं: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वुडलैंड, श्रबलैंड, सेमी श्रब, डेजर्ट और डेजर्ट। इकोसिस्टम, a biological community together with the associated abiotic environment is called ecosystem. The ecosystem is a major unit of ecology. Organisms interact with their environment within an ecosystem. Eco part of the word related to the environment and the system part means a collection of related parts functioning as a unit. The study of ecosystem includes: number 1,
energy flow between biotic and abiotic components. Number 2, cycling of chemicals between biotic and abiotic components. The ecosystem consists of two basic interacting components. First is biotic component, second is abiotic component. Biotic component consists of animals, plants, fungi, and microorganisms, while abiotic component consists of atmosphere, climate, soil, and water. एबायोटिक इन्वायरमेंट से एसोसिएटेड एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी इकोसिस्टम कहलाती है। इकोसिस्टम इकोलॉजी का मेजर यूनिट है। इकोसिस्टम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स अपने माहौल से इंटरैक्ट करते हैं। इकोसिस्टम दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। पहला इको, जिसका मतलब है इन्वायरमेंट, जबकि दूसरा सिस्टम, जिसका मतलब है एक जैसे पार्ट्स की कलेक्शन जो कि यूनिट के तौर पर रहती है। इकोसिस्टम में जिनका मुताला किया जा सकता है, इनमें ये शामिल हैं। नंबर 1, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान एनर्जी फ्लो। नंबर 2, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान केमिकल्स की साइक्लिंग। इकोसिस्टम दो बेसिक इंटरैक्टिंग कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। पहला बायोटिक कंपोनेंट है, जबकि दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल है, जबकि एबायोटिक कंपोनेंट एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, सॉइल और वाटर पर मुश्तमिल है। There are two types of ecology. Number 1, art ecology. Number 2, syn ecology. Art ecology is the study of relationship of a single population to its environment. For example, a person is studying the effect of water pollution on 50 to 100 plants of soybean on their growth and yield. As he is studying the single or one population of soybean plants, so this is art ecology. सिंगल पॉपुलेशन का अपने इन्वायरमेंट से रिलेशनशिप स्टडी करना आर्ट इकोलॉजी कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स 50 to 100 सोयाबीन प्लांट्स पर वाटर पोल्यूशन का ग्रोथ और यील्ड पर इफेक्ट स्टडी कर रहा है। ये शख्स चूंकि एक सिंगल सोयाबीन की पॉपुलेशन को स्टडी कर रहा है, इसलिए ये आर्ट इकोलॉजी है। सिन इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस to their environment is called syn ecology. It is also called as community ecology. Growth responses of individual plant to environment are complex factors. One factor increases the effect of other factor. These factors interact with one another. Complexity of environment depends on the combination of various factors. Following factors are studied in syn ecology. Number 1, the various aspects of community like the origin, structure and composition of community. Number 2, history of community. Number 3, the dynamics of community, because community is not a fixed entity but different changes occur at different times. Number 4, 3 levels of integrations. They are also studied. These levels are individual, population and community. Different communities या populations के ग्रुप्स और इनके इन्वायरमेंट से रिलेशनशिप की जो स्टडी है, इसे सिन इकोलॉजी कहते हैं। इसे कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहा जाता है। इंडिविजुअल प्लांट के इन्वायरमेंट के मुताबिक
ग्रोथ रिस्पॉन्सेज कम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के इफेक्ट को इंक्रीज करता है। ये फैक्टर्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। इन्वायरमेंट की कम्प्लेक्सिटी दरअसल वेरियस फैक्टर्स के कॉम्बिनेशंस पर डिपेंड करती है। इकोलॉजी में 10 सेल फैक्टर स्टडी किए जाते हैं। नंबर 1, कम्युनिटी के मुख्तलिफ फैक्टर जैसा कि ओरिजिन, स्ट्रक्चर और कम्युनिटी की कंपोजिशन। नंबर 2, कम्युनिटी की हिस्ट्री। नंबर 3, कम्युनिटी के चेंजिंग एस्पेक्ट्स, क्योंकि कम्युनिटी फिक्स नहीं रहती बल्कि मुख्तलिफ औकात में चेंज होती रहती है। नंबर 4, कम्युनिटी में इंटीग्रेशन के 3 लेवल, मिसाल के तौर पर ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन और कम्युनिटी। Biosphere. Biosphere is a thin layer of atmosphere in which all living organisms exist. Organisms within the biosphere are adapted to the environment. These organisms also interact to modify and control the chemical and physical conditions of the biosphere. An organism lives in its habitat. An organism responds to a variety of environmental factors. When all the environmental factors are within the range of its tolerance, then organism can inhabit a location. Biosphere is characterized by two terms. Number 1, habitat. Number 2, ecological niche. माहौल की वो बारीक लेयर जहाँ तमाम जानदार रहते हैं बायोस्फीयर कहलाती है। बायोस्फीयर का वो हिस्सा जिसमें ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो उन ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट कहलाता है। ये जानदार बायोस्फीयर की फिज़िकल और केमिकल कंडीशंस को कंट्रोल और चेंज करने की कोशिश करते हैं। जिस जगह पर जानदार रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ तरह के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को रेस्पॉन्ड करता है, यानी फैक्टर्स के स्टिमुलस के मुकाबले में रेस्पॉन्स देता है। जब तक तमाम फैक्टर्स ऑर्गेनिजम्स की कुव्वत बर्दाश्त तक होते हैं तब तक जानदार वहाँ रहता है। बायोस्फीयर को दो तरह से बयान किया जा सकता है। नंबर 1, हैबिटेट। नंबर 2, इकोलॉजिकल निश। Habitat, the place where an organism lives, is called its habitat. Habitat may be aquatic or terrestrial. Aquatic habitat may be freshwater or marine. वो जगह जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। हैबिटेट एक्वेटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल भी। एक्वेटिक हैबिटेट फ्रेश वाटर वाला भी हो सकता है और मैरीन भी। इकोलॉजिकल निश, द बेसिक रोल और प्रोफेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी इज कॉल्ड इकोलॉजिकल निश। Ecological niche is a distributional unit. The physical structure and biological limitations keep species in this distributional unit. The niche is particularly concerned with the number 1, feeding habits, number 2, the roles of a particular species within an ecosystem, number 3, all aspects of its interaction with the living and non-living environment. Number 4, ecological niche within a habitat also specifies how the organism gets its supply of energy and materials. For example, predator-prey relationship of organism and competition. Number 5, organism behavior and its interactions in environment. Number 6, niche also includes all the physical environmental factors necessary for the survival, such as
range of temperature, range of humidity, pH of water and pH of soil. कम्युनिटी में जानदार का बेसिक रोल या प्रोफेशन इकोलॉजिकल नेच कहलाता है। इकोलॉजिकल नेच एक डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट है। फिजिकल स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल लिमिटेशन स्पीशीज को इस डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट में रखते हैं। इकोलॉजिकल नेच की स्टडी हमें ये बताती है कि ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी में क्या काम सरअंजाम देता है, इसका फूड और एनिमीज से क्या ताल्लुक है। नेच जानदार के प्रोफेशन से मुताल्लिक है। ख़ास तौर पर नेच नंबर 1 जानदार की फीडिंग हैबिट के बारे में बताता है। नंबर 2 मखसूस स्पीशीज का इकोसिस्टम में क्या रोल है इस बारे में बताता है। लिविंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन के तमाम एस्पेक्ट्स के बारे में बताता है। नंबर 4 एक हैबिटेट में इकोलॉजिकल नेच ये भी बताता है कि जानदार एनर्जी कैसे हासिल करता है। मिसाल के तौर पर कंपटीशन कैसा है, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप कैसा है। नंबर 5 जानदार के बिहेवियर और माहौल के साथ इंटरैक्शन के बारे में भी बताता है। नंबर 6 इकोलॉजिकल नेच उन तमाम फैक्टर्स के मुतालिक बताता है जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, जैसा कि टेम्परेचर की रेंज, नमी का तनासब, पानी की pH और सॉइल की pH। Now we discuss ecology as an experimental science. The human always remain interested in other organisms and their environment. The prehistoric people were hunters. They had to learn where animals and plants were found. Many natural historians, from Aristotle to Darwin, observed and described organisms in their natural habitat. Thus, the old natural history formed the basis of ecological science. Ecology has a long history of being descriptive science, but most modern ecologists are skilled scientists. However, there is a great difficulty to conduct experiments in ecology, but still many creative ecologists are testing hypotheses in the laboratory. They are also experimentally manipulating populations and communities in field. Many ecologists also use mathematical models to answer ecological questions. Many important variables and their relationships are described through the mathematical questions. Computer is used in the study of ecology. This is very useful approach. इकोलॉजी भी एक्सपेरिमेंटल साइंस है। इंसान की दिलचस्पी हमेशा से दूसरे ऑर्गेनिजम्स और उनके माहौल में रही है। माजी में लोग शिकारी थे, वो जानना चाहते थे कि एनिमल्स और प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं। अरस्तु से लेकर डार्विन तक के तमाम अफराद ने ऑर्गेनिजम्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में ऑब्जर्व किया और उनकी वजाहत की। इसका मतलब ये है कि ओल्ड नेचुरल हिस्ट्री जो है इकोलॉजिकल साइंस से बनी है। इकोलॉजी में ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन है, लेकिन जदीद दौर के इकोलॉजिस्ट स्किल्ड साइंटिस्ट हैं। इकोलॉजी की फील्ड में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी क्रिएटिव इकोलॉजिस्ट हाइपोथेसिस के मुताबिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और उन्हें लैब्स में टेस्ट करते हैं। इसी तरह से बहुत से इकोलॉजिस्ट इकोलॉजिकल आंसर के लिए मैथमेटिकल मॉडल यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स और इनके रिलेशनशिप को मैथमेटिकल क्वेश्चन के ज़रिए से डिस्क्राइब किया जाता है। इकोलॉजी की स्टडी में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक यूज़फुल अप्रोच है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।